وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میڈیا خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چاہتی آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ، اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو، تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنے فرض سے غفلت برتتا ہے۔ اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے۔ مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں۔ اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں۔ مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائک دینے جا رہے ہیں، فری۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے، سوری بوائز، تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا، پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے، اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے۔ میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی،
बारिशों का महीना है तो नीचे बच्चों को नहीं बैठना चाहिए था। वहां पर बच्चे गए और वो छत गिर गई, 14 बच्चे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। 3 दिन मुझे नींद नहीं आई। और जब मैं सुनती हूं कि बच्चा ड्रेन में गिर गया, बच्चा नाले में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, तो जानते हो मुझे कितनी तकलीफ होती है। और मैं दिन रात तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के पीछे होती हूं कि तमाम गटर्स को ढकना लगाओ। लेकिन आप जानते हो कि हमारे मुआशरे में कुछ एलिमेंट्स ऐसे, रात को हम ढकना लगाते हैं, रात 1-2 बजे आके कोई आके वो ढक्कन चुरा के ले जाता है, अगले दिन वो फिर खुला एक मैन होल बन जाता है। तो बच्चों, मेरा सफर इतना आसान नहीं है। मेरे ऊपर 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। मेरे पे लाखों करोड़ों ब्राइट बच्चे जिस तरह के मेरे सामने बैठे हैं और जो स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मेरे पे उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों, अगर आपके पास एक एयर कंडीशन सवारी के लिए वसाइल नहीं है और आपको रिक्शे में, वैन्स में जाना पड़ता है स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो आपकी सड़क पे, आपकी दहलीज पे इंशाअल्लाह ताला ग्रीन बस आएगी, एयर कंडीशन बस आएगी आपको लेने के लिए। तो मेरे बच्चों, फखर से कहो, हां, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पे गरीब और अमीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पानी देना प्लीज। जो लाखों रुपया फीस देकर एक अमीर बच्चे को जो सहूलत मुयस्सर है, वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया दिए बगैर मेरे तमाम बच्चों को अवेलेबल है। और आपको पता है कि भले किसी का कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, जब आप तालीम हासिल करते हो तो आप सब बराबर हो जाते हो। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे रिपीट करो। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो, आला तालीम हासिल कर लेते हो, तो फिर आपके लिए जिंदगी के रास्ते खुल जाते हैं। फिर गरीब अमीर का फर्क मिट जाता है। और मेरे बच्चों, ये जो नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैं, मैं अपने घर में अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पे बैठ के उनकी पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ तय की है। और जब आपके टेस्ट हो रहे थे, 1000 बच्चे की जगह स्कूल में 5-5 हजार बच्चे क्यू में लाइंड अप थे टेस्ट देने के लिए। मुझे ऐसा लगा जलसा हो रहा है। मां बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको ये टेस्ट देने के लिए लाए। क्यों? यहां पर एक डीएसपी का बच्चा भी पढ़ता है और यहां पर एक मजदूर का बच्चा भी पढ़ता है, क्योंकि टैलेंट जो है उसके लिए पैसे और वसाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक लाख लैपटॉप्स हम आपको दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 50,000 मजीद होनहार स्कॉलरशिप्स हम आपको दे रहे हैं। और जिस स्कूल में भी मिसिंग फैसिलिटी है, किसी का बाथरूम नहीं है, किसी का बाथरूम टूटा हुआ है, किसी में फर्नीचर पूरा नहीं है, किसी में क्लासरूम्स पूरे नहीं है और बच्चों को जो बरामदा है उसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है, या कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, पूरे पंजाब में 40 बिलियन रुपए की लागत से आपकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज को ठीक किया जा रहा है। आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा रही है। 6000 लैब्स हम बना रहे हैं माशाल्लाह। आपके लिए कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं। आपके लिए हम आईटी लैब्स बना रहे हैं और साथ आपके लिए एआई लैब्स मैं बना रही हूं, ताकि मैं जापान गई, मैं चाइना गई, वहां के बच्चे एआई पढ़ रहे थे। मैंने कहा अगर वहां के बच्चे एआई पढ़ सकते हैं तो पंजाब का बच्चा एआई क्यों नहीं पढ़ सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोटिक्स सीखो, ताकि आपको आपके लिए वसाइल के तरक्की के दरवाजे खुल जाएं और उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी होंगी। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चों कि एक वजीर तालीम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
राना सिकंदर का छोटा बेटा लाहौर में जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली ईयर्स एजुकेशन बनाया है, उसमें राना सिकंदर का बेटा पढ़ता है। ये तफरीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से पंजाब ने खत्म की है, और अभी तो आगाज है, आप देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला। 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। और मेरे बच्चों, मैं जब स्कूल्स का दौरा करती हूं तो मुझे पता चलता है कि बच्चे जो हैं, कई इतने गरीब घर से बच्चे हैं कि वो नाश्ता करके नहीं आते और 10-11 बजे स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। उनके लिए हमने दूध और बिस्किट्स का प्रोग्राम शुरू किया है 25 अरब रुपए की लागत से, और उसमें जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहां पे राना कितने बच्चों को मिल रहा है? 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह। और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल? पूरे पंजाब में एनरोलमेंट कितनी बढ़ी है? ये आपका जो 10,000 अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है स्कूल्स का, इसके पूरा मुझे टोटल बताओ। तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो और एनरोल हुए हैं पंजाब के अंदर। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये बड़ी जरूरी बात है। पंजाब में मैंने अभी ग्रीन बसेस की बात की। पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नजर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नजर आ रही हैं, जहां पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहां पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस हैं। खवातीन के लिए एक रिस्पेक्टेबल अलग से उनका कंपार्टमेंट है जहां उनको किसी हैरेसमेंट का सामना, किसी खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए फ्री है, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोगों के लिए फ्री है, स्पेशल लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, खवातीन के लिए फ्री है माशाल्लाह। तो 1500 बसेस आ जाएंगी। इस महीने के आखिर तक 1100 बसेस आ चुकी होंगी और मजीद 1500 आएंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 3000 से ज्यादा बसेस पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम जो तहसीलें, गांव में भी इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चल रही होंगी। सिर्फ लाहौर में ये हमें कहते थे कि लाहौर में बहुत तवज्जो देती है, मरियम नवाज की इक्वल तवज्जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, पूरे पंजाब के अंदर है। और पंजाब में इतने बड़े तकरीबन 750 बिलियन का ये टोटल प्रोग्राम होगा। तमाम पंजाब में जहां जहां जिन जिन शहरों में बारिश के बाद पानी खड़ा होता था, आपकी गलियों में जहां पे सीवेज नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी, वहां पूरी सड़क खोद के नीचे से हम नया निजाम बना रहे हैं। और जब हमने वो पाइप्स निकाले, वो गले सड़े पाइप्स थे। पिछले 50-60 सालों में वो पाइप्स तब्दील नहीं हुए थे। गंदा और साफ पानी मिक्स हो रहा था, बारिश का पानी कहीं जाने का निजाम नहीं था। अब इससे भी बड़े जो आपका ये टेंट लगा हुआ है, ये कैनपी जो लगी हुई है, इससे भी बड़े हर शहर के अंदर कई जो दर्जनों स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं अंडरग्राउंड, जहां पे बारिश का पानी जाएगा। पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है। और पूरे पंजाब में कहीं वासा का निजाम नहीं था सवाए 2-3 शहरों के। अब पूरे पंजाब 40 अजला के अंदर वासा मौजूद है, अपने नए फ्लीट्स के साथ, अपने नई मशीनरी के साथ, अपनी नई इक्विपमेंट के साथ, अपने नई ह्यूमन रिसोर्स के साथ, ताकि अगर आरिफ वाला में बारिश होती है तो लाहौर से गाड़ी ना बुलाई जाए वो पानी सक करने के लिए, या ये ना हो कि 2-2 हफ्ते पानी खड़ा रहे वहां पर और मेरे लोगों को तकलीफ हो। और इसी तरह मेरे बच्चों, अपना घर स्कीम में आप जानते हो 2 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर कितने घर बने हैं पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह? कोई बता सकता है मुझे? चलो टेक अ गैस, कितना? 2 लाख? आपको कैसे पता है? वाह! 2 साल के अंदर अपनी छत, अपना घर के अंदर
آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 1 لاکھ نہیں, 1.5 لاکھ نہیں, 2 لاکھ گھر بنائے ماشاءاللہ. سوچو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے, اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس میں آرام سے شفٹ ہو جائے. 2 لاکھ گھر اس وقت کمپلیشن پہ, جس میں سے 1,80,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ 700-800 گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ بڑھائیں گے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, جن کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. 2,000 لوگوں کو 100% فری آف کاسٹ 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے. ان کو ڈیلیور ہو گئے ہیں اونرشپ کے پیپرز, اور وہ اب قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زمین بھی مل گئی, اپنا گھر بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ, ابھی میں نے آپ کو کہنا کا واقعہ سنایا, اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں, جو ولنریبل لوگ ہیں, جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے, جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے, اس کے نیچے گھر والے آ کے یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے, محفوظ اپنا گھر, محفوظ اپنی چھت, محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ, اگر چھت ٹھیک کرنی ہے, مضبوط کرنی ہے, چھت کی تعمیر کرنی ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں, جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا, اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے, جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. جو ایک گھر میں 3-3, 4-4 فیملیز رہتی ہیں, جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں, 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں, کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں, کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے, انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے, جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا, اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے, وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں, سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی, میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ, یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں, یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ, کسی کو 4 ایکڑ, کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے. 100 روپیہ سال کی لیز پہ, اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے, اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں, اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں, پیسٹیسائیڈ خریدنا ہے پیسٹیسائیڈ خرید لیں, کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے, ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں, اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپیہ ایڈیشنل انکم ہو, ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس, کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی, کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ, کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ. ماشاء اللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک پنجاب, اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں, شہروں میں بھی بن رہی ہیں.
गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, सिर्फ लाहौर में और पिंडी में मेट्रो नहीं, गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोज बन रही हैं, ताकि मेरे लोगों को बेहतरीन सफर की कम से कम कीमत में सहूलियात मिले। और ऐसी स्पीड पे काम हो रहा है कि आपको अंदाजा नहीं है। पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, और वो चारों सूबों के लिए, आजाद कश्मीर के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आज की अपनी तकरीर में आजाद कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूं कि खून खराबे का साथ ना दें, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, ताकि, और मुस्लिम लीग नून को वोट दें कि मुझे वहां पे हुकूमत बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि जो काम पंजाब में हो रहे वही काम आजाद जम्मू कश्मीर में भी हो, ताकि उनको महरूमी का एहसास ना हो। ऐसी जमातों को वोट ना दें जिनको काम करना नहीं आता, जिनको परवाह नहीं है, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बरतते अपने अवाम के साथ। हुक्मरान को तो नींद नहीं आनी चाहिए रात को। जब इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहां बैठे हो तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी कि मेरे बच्चों को पता नहीं किस चीज की जरूरत होगी। मैं तो सो नहीं सकती इस बात से। और सबसे प्यारी बात बच्चों, ब्यूटिफिकेशन की जा रही है तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में। क्या खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत माहौल, खूबसूरत बाजार, खूबसूरत गलियां की सिर्फ लाहौर का हक है? सिर्फ पिंडी का हक है? वो लिया का भी हक है, वो भक्कर का भी हक है, वो डीजी खान का भी हक है, वो साहिवाल का भी हक है, वो मुल्तान का भी हक है, वो गुजरांवाला का भी हक है, वो जेलम का भी हक है, वो मरी का भी हक है, वो शेखोपुरा का, कसूर का भी हक है। पूरे पंजाब के अंदर अरबों रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन, आपके बाजारों को बेहतरीन बनाया जा रहा है, आपकी सड़कों को कुशादा किया जा रहा है, आपको स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, आपके सड़कों के किनारे प्लांटेशन हो रही है, आपके पब्लिक पार्क्स को इंप्रूव किया जा रहा है, पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। क्यों मैं बना रही हूं ये सारा? मैं तो टोबा टेक सिंह में नहीं रहती, मैं तो लिया और भक्कर में नहीं रहती, मैं तो राजनपुर में नहीं रहती। आपके लिए, ताकि आप जब घर से निकले तो आपको एहसास हो कि आपकी हुकूमत को आपका एहसास है, ताकि आपको एहसास हो कि इस मुल्क के वसाइल पे जितना हक किसी और का है उतना ही हक आपका है। और बच्चों, बहुत सारी चीजें, सुथरा पंजाब तो देखा है ना आपने। 2 लाख वर्कर ग्रीन यूनिफॉर्म पहन के आपकी गलियों की सफाई कर रहे हैं, आपके मोहल्लों की सफाई कर रहे हैं, आपकी सड़कों की सफाई कर रहे हैं, आपके देहात की सफाई कर रहे हैं, आपके शहरों की सफाई कर रहे हैं, आपके सूबे की सफाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आपको भी जिम्मेदार शहरी बनना है। अपने मुल्क की सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में कूड़ा नहीं फेंकना, वरना भी क्या हो रहा है, लोग कूड़ा फेंकते जा रहे हैं और हम उठाते जा रहे हैं। लेकिन एक सिविलाइज्ड कौम होने का हमें सबूत देना चाहिए। कूड़े को उसके ठिकाने पे फेंके, वो डस्टबिन पड़ी होती है या वो कोई कंटेनर पड़ा होता है, उसके सामने फेंक देते हैं, उसके अंदर नहीं फेंकते। बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? अपने स्कूल्स को साफ रखें, अपनी ग्रीन बसेस को साफ रखें, अपनी गलियों को साफ रखें। मैं सफाई कर रही हूं, लेकिन 2 लाख की बजाय अगर 2 करोड़ लोग भी सफाई करने आ जाएंगे तो अगर गन डलता रहेगा, अगर लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो सफाई नहीं हो सकती। घटनों के ढक्कन चोरी होते रहेंगे तो लोगों के बच्चे या लोग गिरते रहेंगे गटरों के अंदर। और फिर आप जानते हो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। आप अस्पताल नहीं जाना चाहते, ना जाएं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, आप क्लिनिक में नहीं जाना चाहते, ना जाएं। क्लिनिक आपके पास चल के आएगा और आ रहा है। करोड़ों लोगों का इलाज हो चुका है फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत मौजूद है, सर्जरी की सहूलत मौजूद है, एक्सरे की सहूलत मौजूद है। 7 लाख दिल के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को, उनके 7 लाख घरों में, पूरे पंजाब यकसा तौर पे पंजाब में 7 लाख मरीजों को दरवाजा खटका के 2 महीने की मेडिसिन का स्टॉक उनके घर पे डिलीवर किया जा रहा है। माशाल्लाह।
जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनको उनके घर पे इंसुलिन डिलीवर की जा रही है ताकि उनको अस्पताल जाके लाइनों में लगना पड़े। तारीख के बेहतरीन अस्पताल बन रहे हैं 20 अजला में, जो कि निगलेक्टेड अजला थे। वहां से लोगों को उठा के लाने में लोगों का इंतकाल हो जाता था। अब वहां पर एक तो एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है। जहां जहां पे एयर स्ट्रिप मौजूद है, एयर एम्बुलेंस वहां से लिफ्ट करती है पेशेंट को और करीबी सहूलत पे लेके जाती है ताकि हर जान जो है वो उसका ख्याल किया जाए। पंजाब वो सूबा है मेरे बच्चों जिसमें सिर्फ इंसानी जान का नहीं, जानवरों का भी ख्याल किया जाता है। जानवरों के लिए भी मोबाइल एम्बुलेंसेज हैं। अगर कोई जानवर कहीं बीमार होता है, वहां पर जाके उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। अभी गर्मी का मौसम है, आप देख रहे हो कि स्मॉग गन्स, ये मरियम औरंगजेब यहां पे बैठी है, इन्होंने स्मॉग को खत्म करने में इतनी मेहनत की है और मैं इनको शाबाश देती हूं कि पंजाब के अवाम की जान स्मॉग से छूट गई है। अल्लाह करे इंशाल्लाह वैसे इस साल भी। स्मॉग गन्स जो है आपने देखा होगा वो गलियों मोहल्लों में स्प्रे कर रही हैं ताकि जहां पर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी की शिद्दत है आप लोगों के लिए, ताकि आपको जहां पे स्प्रे किया जाता है वहां 2-3 डिग्री जो है वो जाहिर है टेम्परेचर नीचे आ जाता है। बाजारों में मैं स्प्रे करवा रही हूं स्मॉग गन्स से ताकि मेरे लोगों को जो है वो गर्मी की शिद्दत का सामना ना करना पड़े। जगह जगह हीट वेव कैंप्स लगे, वहां पर लोगों को पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। मुझे ख्याल है आप लोगों का, मुझे सिर्फ अपने खानदान का ख्याल नहीं है, मुझे आप लोगों का ज्यादा ख्याल है। और इसके अलावा 20 शहरों के अंदर इस वक्त कार्डियोलॉजी कैथ लैब्स लग रही हैं कि यहां पे दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें जहां पे आपको, और ऐसे दूर दराज इलाकों में मुजफ्फरगढ़ जैसी जगह पे लगी है, जेलम जैसी जगह पे लगी है, जहां पे कभी कोई दिल के अमराज की तशखीस होगी। 20 दिल के अस्पताल बन रहे हैं। लाहौर में एक दिल का अस्पताल अभी कंप्लीशन पे आया है, उसमें पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट था, लेटेस्ट मशीनरी थी पंजाब के आवाम के लिए, मैं वो लेकर आई। लोगों को स्ट्रोक हो जाता था, कोई दवाई नहीं था। स्ट्रोक का जो एक इंजेक्शन होता है, जो अगर आपको 8-10 घंटे में लग जाए तो जो पैरालिसिस होता है या जो आपको नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे। 3 लाख रुपए का इंजेक्शन है, पंजाब के तमाम THQs में वो अवेलेबल है ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे अगर उनको स्ट्रोक हो तो। $10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को। वो कह रहे हैं कि वी नीड टू फ्लाई इन नेक्स्ट 15 मिनट्स क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान कार्ड मिला है, जिसके अंदर तकरीबन 450 बिलियन किसान को दिया गया है, उसके बीज के लिए, उसके फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए, उसके पेस्टिसाइड के लिए। और 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 ट्रैक्टर किसानों को दिया गया इन 2 सालों के अंदर। 30,000 पिछले 77 इयर्स में मिला लें तो 20,000 ट्रैक्टर नहीं गया लोगों को। ये 2 साल में 30,000 ट्रैक्टर गया है माशाल्लाह। और अगले जो आने वाले साल हैं, 3 साल इंशाअल्लाह ताला, उसमें कितने हो जाएंगे ट्रैक्टर्स? 50,000 और देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हाई एंड मशीनरी जो है किसान को अपने पूरे जो हमारा एग्रीकल्चर का निजाम है उसको मैकेनाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस की नई मशीनरी आई है। हाई एंड मशीनरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट। पिछले 20 साल में 3 बिलियन की मशीनरी जो है पूरे पंजाब में आई थी, और अब माशाल्लाह 70 बिलियन की मशीनरी 2 साल में किसान को मिल रही है। 70 बिलियन की मशीनरी 2 साल में। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है ताकि वो अपना कोई नया कारोबार जो है वो शुरू कर लें। और इसी तरह जो बेवा औरतें जिनके सर से शौहर का
साया उठ गया उनके लिए। और वो बच्चे जो वालिदैन से महरूम हैं, जो सिंगल ऑर्फन है या डबल ऑर्फन है, जिसका वालिद नहीं है या वालदा नहीं है, उनके लिए हमने रहमत कार्ड इशू किया है। उनको लाख रुपया साल का जो है वो मिला करेगा इंशाल्लाह, ताकि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी तरह 1 लाख लोगों को जो माजूर लोग हैं और बिस्तर से नहीं उठ सकते, उनको हिम्मत कार्ड मिल रहा है। इसी तरह माइनॉरिटीज में जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनको माइनॉरिटी कार्ड में महीने का 3-4 हज़ार रुपया मिल रहा है। और साफ पानी, जल्दी मैं खत्म करती हूं। परसों मैंने मंसूबे का इफ्तिताह किया। पंजाब में बहुत जगहों पे साफ पानी नहीं था। आपने देखा होगा, आपके भी इलाकों में नहीं होगा, लोग सर पे उठा के, कंधों पे उठा के, बच्चे बूढ़े लोग और खवातीन अपने सर और कंधों पे पानी की बोतलें उठा के लाते थे। आप जानते हो, खुशाब, रहीम यार खान, बहावल नगर और डीजी खान, ये वो इलाके हैं जहां पे लोगों को दूर दूर से पानी 2-2 किलोमीटर से उठा के लाना पड़ता था। 4 बॉटलिंग प्लांट्स लग चुके, फंक्शनल हो चुके, जिसमें एक प्लांट 5000 लीटर साफ पानी जो है वो घंटे का प्रोड्यूस कर रहा है, और तकरीबन 1,60,70,000 जो लीटर पानी है वो दिन का प्रोड्यूस हो रहा है। पंजाब हुकूमत की गाड़ियां, पंजाब हुकूमत के ट्रक आपका दरवाजा खटका के आपको आपका पानी पहुंचा के आएंगे इंशाल्लाह, पीने का साफ पानी। और बहुत बड़े बड़े मंसूबे लग रहे हैं पीने का साफ पानी तमाम लोगों को, पंजाब के तमाम लोगों को मुहैया करने का। इसके अलावा एक बात मैं और करना चाहती हूं, और वो ये है कि अगर पंजाब में रहने वाले किसी भी शख्स को, किसी भी खातून को, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्पेशल फर्द को, किसी भी जरूरतमंद को अगर फौरी राशन की जरूरत है, फौरी व्हीलचेयर की जरूरत है, फौरी हेयरिंग एड की जरूरत है जो समाज का आला होता है, कोई और असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत है, आप मरियम को बताएं, हेल्पलाइन में कॉल करें। 3 दिन के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको हेल्प आपके दरवाजे पे आएगी इंशाअल्लाह ताला। इतना सब कुछ भी करने के बाद अभी मुझे लगता है कि कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है और करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अपने तमाम बच्चों की खिदमत कर सकूं, पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकूं, और आपको अपनी हकीकी मां और मरियम नवाज शरीफ में कभी फर्क महसूस ना हो। होनहार स्कॉलरशिप की 60% बेनिफिशरीज लड़कियां हैं। इतनी ब्राइट बच्चियां हैं मेरी, इतने ब्राइट बच्चे हैं पंजाब के। तो इतनी ब्राइट बच्चियां और बच्चे, जिस मुल्क का, जिस सूबे का मुस्तकबिल हो, उसको कभी ज़वाल आ सकता है? आ सकता है? बच्चों बताओ, आ सकता है? अपने मुल्क से प्यार करोगे? अगर कोई ये कहे कि अपने मुल्क को जला दो, दंगा फसाद करो, पुलिस वालों को मारो, करोगे कभी? ये आपका मुल्क है, इसकी हिफाजत आपने करनी है। राना सिकंदर, आपको, सेक्रेटरी स्कूल्स को और आपके पूरे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शाबाश। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के नारा लगाओ। पहले बताओ, रेडी? 1 2 3, पाकिस्तान। शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। आई लव यू ऑल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आरिफ वाला में तकरीब से खिताब कर रही थीं और उन्होंने कहा कि साफ सुथरा प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिली। मजीद उन्होंने कहा कि बच्चे अब फख्र से कह सकेंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।